So student, this is lecture 31 based on your fifth unit. Okay. And the fifth unit basically based on your smart sensors or intelligent sensors. Okay. So in this lecture, we are going to discuss about some points related introduction to intelligent sensor. Okay. What are the intelligent sensor? What is the definition of intelligent sensor? Okay. And different sensors are available in market. What are they? Okay, so we will discuss about these sensors. Okay, so let's start with some points. Okay, later what is the meaning of intelligent sensor? Okay, so I'm just writing some lines, some important lines regarding the intelligent sensor, and it will give you the idea about what is the basic definition of this smart sensor or the intelligent sensor. Okay, so I am using both the term smart sensor or intelligent sensor. Both are same thing. Okay, so basically they are the sensor in which signal conditioning is carried out within the transducer oblique sensor housing and provide standardized output signals in digital form and suited for transmission via communication bus to control processing unit. Okay, so this is the basic definition of your smart sensor or intelligent sensor. Okay, so what is the, as you can see, these sensors in which signal condition. Okay, so if you remember कि जो हम measurement करते थे. Okay, so after getting the output from the sensor, we have to process this output. Okay, कि सेंसर ने तो सेंस कर लिया, बट जो आउटपुट आया उसको हमें क्या कराना है, प्रोसेस कराना है. Okay, so for processing we do the this signal conditioning. तो ठीक है, लाइक जैसे आउटपुट आया सेंसर का तो मे पॉसिबल दैट क्वांटिटी इज इन एनालॉग फॉर्म. ओके, सो अगर सिग्नल हमारा वीक है तो वी हैव टू एम्पलीफाई इट, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट. ओके, इफ जो सिग्नल आ रहा है वो नॉइजी है, देन वी हैव टू रिमूव दिस नॉइज यूजिंग द फिल्टर्स. सो these steps are called signal conditioning. Okay, so same point is mentioned over the sensor in which signal conditioning is carried out within the transducer housing.
तो जहां पे भी आपका सेंसर आप डिजाइन कर रहे हो, सेंसर बना रहे हो, वो उसके अंदर क्या हो, इनबिल्ट हो, उसे उस प्रोसेस को आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल सपोज आपने ये एक सेंसर का सर्किट बनाया, ठीक है, तो जो भी सिग्नल कंडीशनिंग है वो इसी के अंदर हो, उसको आपको फर्दर एक यूनिट आगे लगाने की जरूरत नहीं है, फिर उसे प्रोसेस करो। ओके, सो उसी के अंदर ये सारी प्रोसेसिंग। Okay, and provide standardized output signal. Why I am saying this? Provide standardized output because suppose आपसे मैंने बोला आपको एक मैंने एनालॉग सिग्नल दे दिया आउटपुट पे। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपसे बोल दिया एक सिग्नल है, उसका बिहेवियर कुछ ऐसे आता है। ओके, नाउ अब मैंने बोला आपसे कि ये इसका मीनिंग क्या है और इससे आप क्या समझ रहे हैं। सो इट इज डिफिकल्ट for us to analyze this signal. So best option क्या है कि बेटर क्या है कि हम जो रीडिंग्स आ रही हो ना डिजिटल फॉर्म में, तो वो हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा एनालाइज करना। सो एंड प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट सिग्नल इन डिजिटल फॉर्म, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्रेफर। सपोज अब ये दे दिया या मैंने आपसे बोल दिया 2 मिली वोल्ट, सो ये हमारे लिए आसान है एज ए यूजर, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है, rather than designing this. Okay, and sorted transfer transmission via communication bus to control processing unit, क्योंकि जो सेंसर का डेटा आ रहा होगा उसे ही हम आगे प्रोसेस कराना। सो वो वहां पे क्या आ गई है आप कंट्रोल यूनिट, सो दैट कंट्रोल यूनिट विल बी योर माइक्रो कंट्रोल। ओके, and communication through the buses. Okay, so now not a single bit because we are going to transmit parallel bits. Okay, so that's why we are using the term bus over here. Okay, so this is the basic definition of your smart sensor. Now if I talk about the some example, ये तो एक तरह से formally definition होगी कि what is the definition. So whenever we talk about this smart sensor or intelligent sensor, okay, as a name suggests, smart. So जो भी task perform हो रहा है, that could be uh, self calculated. Okay, so आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। एज ए मैन्युफैक्चरर एक बार आपने बना दिया, देन आपको उसे फर्दर आगे प्रोसेस कराना है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट बाय यूजर्स। ओके, सेंसर अपने आप ही वो कैलकुलेट कर, ओके, फिर उसको फर्दर प्रोसेस कर। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस smart sensor, three term I uses over, okay, and they are self testing, okay, self calibration and self communication. Okay, I'm going to write these three main parameters for smart sensor. First one is the self calibration, self testing, and third self communication. ओके, सो अगर ये तीनों ही चीजें हमारे सेंसर में हो रही हैं, देन वी कैन से दैट कि जो सेंसर है दैट इज योर स्मार्ट सेंसर। क्लियर? सो अभी इन तीनों टर्म की हम बात आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कमिंग लेक्चर्स में। फर्स्टली वी टेक सम एग्जांपल। ओके, एक ब्रॉड एरिया में समझते हैं कि why we are saying this intelligent sensor or smart sensor. Okay, so most of you guys are using your mobile phone, smartphone. Okay, and these smartphone have so many sensors, बहुत सारे सेंसर लगे हुए।
ठीक है। सो अगर एक स्मार्ट इंटेलिजेंट सेंसर के मैं एग्जांपल देना चाहूँ, सो बेस्ट एग्जांपल है योर इंटेंसिटी और योर मोबाइल्स लाइट। ओके, कि जब अगर इफ यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन, ओके, सो जो इंटेंसिटी है आपके मोबाइल से जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, ओके, सो अगर आपके पास आप उसे रात में ओपन करेंगे तो इंटेंसिटी विल बी हाई, ओके, और उसे आप दिन में यूज करेंगे, धूप में कभी यूज करना अपने मोबाइल को, सो इंटेंसिटी विल बी लो। ओके, सो दैट इज अ स्मार्ट सेंसर कि जो क्या कर रहा है, उस लाइट की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहा है और उस कैलकुलेशन को आगे फर्दर प्रोसेस, जो भी कंट्रोल आपके मोबाइल में लगा है उस माइक्रो कंट्रोलर से आपके फोन की जो इंटेंसिटी जनरेट हो रही है, लाइट इंटेंसिटी, स्क्रीन की जो इंटेंसिटी जनरेट हो रही है, उसको वो कंट्रोल कर रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ओके, सो द सेंसर इज doing self calibration, self testing and self communication. ओके, अब एज ए लेमैन मैं आपको समझाऊं तो क्या हो रहा है कि जब आपने मोबाइल फोन यूज किया, सो सपोज यू आर डूइंग यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन इन डार्कनेस और रात में यूज कर, सो ऑब्वियसली जो आपकी इंटेंसिटी होगी वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, जो जनरेट हो रही है लाइट मोबाइल फोन से। सो उसने क्या देखा, इन्वायरमेंट की इंटेंसिटी को सेंस किया, सेंस करने के बाद उसको कैलकुलेट किया कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, उसको फर्दर कैलिब्रेशन किया। ओके, देन टेस्टिंग की, टेस्टिंग मींस व्हाट शुड बी द थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि व्हाट विल बी द आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट, वो सेल्फ टेस्टिंग की। एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज फाइनली सेंसर ने माइक्रो कंट्रोलर को कम्युनिकेट किया बाय सेल्फ कि this is your output of the intensity of the environment, now you have to improve at this level। ओके, सो उसने अपने आप क्या किया, उस इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, उसने चेक किया और खुद ही। सो दिस इज द वन important example regarding your intelligent sensor, smart sensor। Okay, so there are so many examples are available in the market। Okay, like if I take second example, that is your uh, you can say automatic machine or washing machine is another example of your uh, intelligent sensor। Okay, what the technology involved over there कि वो क्या करें, जब आपने अपने क्लोथ्स वॉशिंग मशीन में डाले, पाउडर डाल दिया, सो अब ऑटोमेटिक में क्या है, यू हैव टू फिल योर पाउडर, वहाँ पे एक बॉक्स लगा रहता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे ये दिस इज योर वॉशिंग मशीन, तो वहाँ पे एक बॉक्स लगा रहा होगा जिसमें आपका वॉशिंग पाउडर होगा। ओके, सो दैट विल टेक बाय योर सेल्फ, ये कितनी क्वांटिटी उसमें डालनी है वो अपने आप उसमें जाएगा एंड दैट विल मिक्स विथ योर बॉडी। नाउ जैसे ही आपने वॉशिंग स्टार्ट की वॉशिंग मशीन, ओके, सो देयर आर टाइमर्स आल्सो अवेलेबल। ओके, सो ऑटोमेटिक में क्या, यू नो नीड टू फिक्स योर टाइमर। अगर आपने देखा होगा तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक आती थी या मैनुअल्स आती थी, उनमें हम वो जो व्हील रहता था टाइमर का, उसे रोटेट करते। बट अब क्या आ रहा है, यू हैव टू जस्ट पुट योर क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन, वाटर को ऑन करना है, वो वाटर अपने आप क्या हो जाएगा, जैसे उस लेवल तक आएगा स्टॉप हो जाएगा और पाउडर उसमें मिक्स हो जाएगा, वॉशिंग पाउडर। एंड वो क्या करेगा, जो क्लोथ्स है, जो डर्ट है उसमें आ रही है, उसकी वैल्यूज को रेगुलरली चेक करेंगे। ओके, सो देयर इज नो नीड टू फिक्स अ टाइमर,
वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो सेंसर्स उसमें लगे हैं, जो वहाँ पे वैल्यूज जा रही है आपके डर्ट की, उसके वाटर की, वो वैल्यूज चेक करेंगे एंड दे विल मैच विद योर थ्रेशोल्ड वैल्यू कि अच्छा इससे नीचे गया मतलब देयर इज नो नीड टू वॉश फर्दर योर क्लोथ्स, सो दैट विल बी स्टॉप। और नहीं है तो अदरवाइज वो क्या करता रहेगा, उसको मशीन विल बी ऑन। Okay, so after particular time, again water will flow, drain हो जाएगा आपका जो पहले वाला वाटर था जो गंदा था वो ड्रेन हो जाएगा, क्लीन वाटर आएगा फ्लो में। वो मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सो सारा का सारा काम कौन कर रहा है, मशीन कर रही है। मशीन के अंदर जो हमने सेंसर्स लगा दिए, सो दे आर स्मार्ट इनफ कि आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। Okay, so these type of sensors are called the smart sensors. Okay, uh, another example is your, I think most of you are using Alexa. Okay, so I think most of you person uh, know about this Alexa. So what the concept of this Alexa? Okay, so क्या हो रहा है वहां पे, you're giving the command. Okay, you are just giving the command, and on the basis of this command your task is going to perform. Okay, so आपने एक बार command दे दी, suppose you want to set your alarm, so you send a command. Okay, and the processing over there जो receiver लगा है, it is receiving your voice. Okay, so अब हम देखें तो there is only signal processing over there, because अगर हम Alexa की बात करें तो it's only show the your temperature, room temperature. Okay, otherwise there is just performing the signal processing over there and giving the command to the microcontroller. Okay, so at the reference of showing the temperature, okay, so they are smart enough, you just give to command, it will show your present your temperature. Okay, and if you want to know the previous temperature, it will show. So you are just giving the command, you don't need to perform manually. Okay, वो अपने आप कैलकुलेट कर रहा है, आपको दे रहा है, टेम्परेचर सेंसर सेंस कर रहा है, अपना डेटा उसमें रिकॉर्ड कर रहा है, एंड इट इज displaying it in the form of digital form or in audio. Okay, so another example of smart sensors are these Alexa's type. Most of you have seen about these uh, smart homes, home automation. Okay, so the sensors are using in these type of home automation are smart sensors. They are enough in this smart. Okay, like if we talk about the motion sensors. Okay, आप उसे दूसरा टर्म बोल सकते हैं स्मार्ट लॉक. Okay, स्मार्ट कैमरास. सो जहां पर भी ये वर्ड स्मार्ट और इंटेलिजेंट यूज हो रहा है, मीन्स मैनुअली जो ऑपरेशन था वो मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है. दे आर परफॉर्मिंग सेल्फ टेस्ट, दे आर परफॉर्मिंग सेल्फ कम्युनिकेशन, दे आर परफॉर्मिंग डूइंग द सेल्फ कैलिब्रेशन. आपको कुछ करने की जरूरत है, एंड विद इन द सर्किट. ऐसा नहीं है कि आपने सेंसर बनाया और सेंसर के आगे suppose you want to process the data, you have to add some other circuit. All the things are available in a single circuit. Okay, so this is the basic definition of your smart sensor or intelligent sensor. Clear?